Good morning, everyone. Today is Monday, a brand new day of a new week. So let's start being positive and do the best we can. I have put everybody's mic on mute. Of course, that would be unmuted afterwards, just after the completion of the writing. So we are starting up the writing task of today. And this is the task that we are supposed to discuss today. So let's discuss the task again. For the students, there are like 4 or 5 new students who have joined in today only. So I will try to go according to them so that they can understand everything as well. So as Ranvinder ma'am would have told you in the orientation class, the most important thing, you always start your letter from the back. हमेशा लेटर को पीछे से शुरू करना है ताकि हमें ये पता लगे कि इन्फॉर्मेशन कैसे सिलेक्ट करनी है बिकॉज इन ओईटी डाटा सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डाटा को सिलेक्ट कैसे करना है दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस लेटर बिकॉज समटाइम्स आपके पास 4 पेजेस का लेटर आएगा you might get a letter of 4 pages. In that case it will become very difficult to choose the data, so you must know how to select the data. So this is very important part of OET and that carries the maximum weightage along with grammar. So the second thing, of course, grammar is the primary thing, of course, with the OET data selection. Data selection matters a lot in OET. So how to select the data? That is the most important thing. The first thing that you must know that to whom we are writing the writer. Write a letter of referral to the nursing coordinator at the Flying Doctor Service. So normally nursing coordinator is a common word for us, so it is not a big deal. But this is something new, Flying Doctor Service. So we need to understand what is this Flying Doctor Service. So I can explain you priorly as well. फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस क्या होती है व्हेन पीपल लिव अवे, जब पीपल रिमोट एरियाज में रहते हैं. रिमोट एरियाज क्या होते हैं? जो फार फ्लंग एरियाज होते हैं, जो फार एरियाज होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े फॉर्म्स पे लोग रहते हैं. जैसे यहाँ पे अगर मैं यूके की बात करूं तो आई वुड से योर्कशायर इज वन ऑफ द प्लेसेस इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूके, जहाँ पे ये होता है. जैसे कोई लोग हिमाचल की किसी बेल्ट में रहते हैं, जैसे आप देखते हो जब हिमाचल में जाते हो, कोई लोग बड़े ही सेंटर में रह रहे होते हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं, जंगल ही जंगल होते हैं, उसके बीच में रह रहे होते हैं. सो दे डू नॉट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स. बट हम इंडिया में क्या करते हैं दैट द पर्सन हैज टू गो टू द डॉक्टर बाय हिमसेल्फ. But in foreign countries what happens is that they provide you services via flying doctor service. So that is what this letter is all about. तो हमें select करना है डाटा नर्सिंग कोऑर्डिनेटर के हिसाब से कि नर्सिंग कोऑर्डिनेटर क्या क्या काम कर सकती है, लेकिन वो फ्लाइट डॉक्टर सर्विस की टीम को लिखना है. कॉमर्शियल रोड पे ये पोर्ट अगोस्टा में ये टीम है. एक्सप्लेनिंग दैट मिसिस चैपमैन विल नीड फुल टाइम असिस्टेंस विद द बेबीज. तो हमें यहीं से पढ़ने से दो चीजें क्लियर हो जाती हैं. वी कैन get two important information. First is babies. That means this lady has babies. Those need to be taken care of. And her 5-year-old son for some time. यानी उसके 3 बच्चे तो पक्के हैं. अगर मैं इतनी सी लाइन पढ़ूं सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर आर 3 किड्स, क्योंकि बेबीज लिखा हुआ है इट इज गिवन इन प्लूरल. दैट मीन्स ये कम से कम 2 तो होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं. सो कम से कम 2 बेबीज मस्ट बी देयर प्लस वन, that is 5-year-old son. So there are total of 3 babies as far as I could get it until now. और फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस टीम को लेटर लिखना है टू प्रोवाइड फुल टाइम असिस्टेंस विद द बेबीज. अब यहीं से वैसे तो हमारा पर्पस, द फर्स्ट थिंग इज हम लेटर किसको लिख रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो नर्सिंग कोऑर्डिनेटर को. हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सिलेक्ट द डाटा इज द पर्पस ऑफ द लेटर. तो हम पर्पस क्या है, सो पर्पस ऑफ द लेटर हमें कहाँ से पता लगता है? वी गेट टू नो अबाउट द पर्पस ऑफ द लेटर फ्रॉम 2 areas. One is here and the second is discharge plan. So over here we have recognized the purpose that it is to provide full-time assistance to the babies and to the 5-year-old son for some time. And we are writing to the nursing coordinator at the flying doctor. So the second thing in the exam that you will read, ये मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ जैसे आप एग्जाम में करोगे. सो इन एग्जाम ऑल्सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड कि आप लेटर किसको लिख रहे हो. सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे लेटर किसको लिख रहे हो, दैट मीन्स टू whom. एंड सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप से पेपर में ये पूछोगे मैं किस लिए लिख रहा हूँ, व्हाई एम आई राइटिंग. सो दैट इज द पर्पस ऑफ द लेटर. तो हमें ये पता लग गया नर्सिंग कोऑर्डिनेटर को लिख रहे हैं, तो इस केस में हम नर्सिंग कोऑर्डिनेटर लिख देते हैं. अब सेकंड चीज हमें ढूंढना है पर्पस ऑफ द लेटर. पर्पस ऑफ द लेटर एक तो हमें पता लग गया मेन पर्पस की बेबीज को असिस्टेंस चाहिए और फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस टीम है, यानी ये पक्का रिमोट एरियाज में रहते होंगे, दूर रहते होंगे. तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेटर को कि ये ऐसा लेटर होगा. सो पेशेंट विल नीड डेली वुंड केयर अरेंज विद फ्लाइंग डॉक्टर, यानी यही फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस के साथ नर्सिंग कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करेगी फ्लाइंग डॉक्टर के साथ और डेली वुंड केयर को प्रोवाइड करेगी. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. सो दिस वी विल सिलेक्ट इन द डाटा ऑफ कोर्स. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. Second, sutures will need to be removed by doctor in 1 week's time if the infection clears up. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि पेशेंट को अभी भी इंफेक्शन है. मतलब मुझे इन छोटी छोटी चीजों से दी स्मॉल थिंग्स
टेल मी व्हाट काइंड ऑफ डाटा शुड बी सिलेक्टेड, यानी मुझे इन्फेक्शन के बारे में भी जरूर लिखना पड़ेगा, बिकॉज अगर इन्फेक्शन क्लियर होती है तो sutures will need to be removed. Rest, light exercise and light diet, not that important, but you can say that also patient needs to be advised to take rest and do light exercise and to take light diet. तो आप ये लिख भी सकते हो, but not that important. तो पहले दो points बहुत important है. Some assistance with the babies, this is very important because it is given over here as well. Some assistance with the babies and the housework, probably live in child care assistant. जैसे हमें ये word normally हमें इस word बड़े अच्छे से समझ आता है, लेकिन जब हम OET में पढ़ते हैं या पेपर में पढ़ते हैं ना, तो हमारा माइंड कंपेरेटिवली माइंड अंडरस्टैंड इट लेस, लेकिन हमें ज्यादा समझाना है. बेसिकली लिव इन का मतलब ये जो चाइल्ड केयर असिस्टेंट है ये लिव इन में रहेगा उसके साथ, यानी 24 घंटे 24/7 दिस पर्सन विल प्रोवाइड. दिस लिव इन मीन्स 24/7 दैट पर्सन विल स्टे देयर चाइल्ड केयर असिस्टेंट फॉर द फर्स्ट 3 months, यानी पहले 3 महीने चाइल्ड केयर असिस्टेंट प्रेफरेबली लिव इन में रहना चाहिए. तो ये भी नर्सिंग कोऑर्डिनेटर अरेंज करके देगी. So that is another thing that nursing coordinator would have to do. Mother craft nurse to assist with the breastfeeding, यानी कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग में भी दिक्कत आ रही है, तो मदर क्राफ्ट नर्स वो होती हैं जो बेबी जो मदर को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करना सिखाती हैं. तो मेरे लेटर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे पता लग गए हैं, तो मुझे पर्पस भी क्लियर हो गया है और मुझे ये भी पता लग गया है कि लेटर मैंने किसको लिखना है. सो आई एम राइटिंग द लेटर टू द नर्सिंग कोऑर्डिनेटर. व्हाई? टू अरेंज फुल टाइम असिस्टेंस विद द बेबीज. और वो फुल टाइम असिस्टेंस कौन है? प्रेफरेबली अ चाइल्ड केयर असिस्टेंट वुड बी रिक्वायर्ड. अपार्ट फॉर दिस पेशेंट विल नीड वुंड केयर फॉर विच flying doctor should be arranged. Also it is important for the patient to do rest, to take rest and take light diet along with the light diet and do light exercises. Also mother craft nurse would be required to assist with the breastfeeding. तो मतलब ये सारा मेरा बन गया पर्पस, यानी कि डिस्चार्ज प्लान. दैट इज द लास्ट पैराग्राफ. लास्ट पैराग्राफ में हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस लिखते हैं. अब पर्पस को जानने के, अब फर्स्ट पैराग्राफ के पर्पस को लिखने के लिए मुझे पर्पस तो मिल गया, लेकिन मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा पेशेंट का बैकग्राउंड देना होता है. तो बैकग्राउंड को देखने के लिए अब मैं पेपर में क्या करूंगा, ये फर्स्ट ये पढ़ूंगा, सेकंड ये पढ़ूंगा, अब लेटर को ऊपर से पढ़ूंगा in the exam. So again, I would be very fair to you that Dr. BKM does not create any material. We provide you the best coaching. So we create sample papers from different institutes. तो हमें मटेरियल से ज्यादा कोचिंग पे फॉल करना होता है. दैट इज व्हाट वी डू बीइंग डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट. सो मिसेस चैपमैन 38 हैज रिसेंटली गिवन बर्थ, यानी कि वो लेडी बहुत ही ओल्ड है. दैट मीन्स शी इज 38 ईयर ओल्ड. इतनी ओल्ड नहीं है आई नो, लेकिन बट कंपेरेटिवली टू व्हेन गिविंग अ बर्थ, सो शी हैज गिवन बर्थ टू ट्रिपलेट्स. तो टोटल किड्स हो गए 4, क्योंकि 3 + 5 ईयर ओल्ड सन, यानी कि 3 + 1 = 4, यानी कि टोटल उसके 4 बच्चे हैं. तभी वो उनको केयर नहीं कर पा रही है बिकॉज देर आर 4 किड्स. तो ट्रिपलेट्स आए हैं विच वर कंसीव्ड बाय IVF. अब ये वाली बात आप, अब दिस इज दैट इज हाउ यू सिलेक्ट योर डाटा, दैट इज हाउ यू मैनेज योर वर्ड काउंट. कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नर्सिंग कोऑर्डिनेटर को ये जानना इतना जरूरी नहीं है कि IVF से हुए हैं या कैसे हुए हैं, क्योंकि नर्सिंग कोऑर्डिनेटर को तो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बेबीज के लिए, हाउस होल्ड वर्क के लिए, उसको चाइल्ड इन केयर लिव इन चाइल्ड केयर असिस्टेंट ऑर्गेनाइज करना है, मदर क्राफ्ट नर्स को भेजना है, फ्लाइंग डॉक्टर को भेजना है वुंड के लिए. तो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन बाय चांस इफ यू राइट इट, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिटन. सो आप ये कह सकते हो हमारे मेडिकल सेंटर में डिलीवर्ड बाय सजेरियन सेक्शन. तो सजेरियन सेक्शन आपको लिखना चाहिए. क्यों लिखना चाहिए? अब ये क्वेश्चन आता है, सर व्हाई दिस? क्योंकि उसको हमें डिस्चार्ज प्लान में दिया है कि वुंड केयर प्रोवाइड करनी है. दैट इज हाउ द डाटा इज सिलेक्टेड. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्चार्ज प्लान व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज सिलेक्टेड. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बट इट डज नॉट इम्प्लाई दैट यू हैव टू इंक्लूड एवरी पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज प्लान. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिस्चार्ज प्लान के सारे पॉइंट इंक्लूड करने हैं. उसमें से भी जो नर्सिंग कोऑर्डिनेटर को मैच करते हैं, तभी मैंने लाइट डाइट एक्सरसाइज वाले पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी. लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे वुंड केयर के कारण हमें ये बताना पड़ेगा सजेरियन सेक्शन है इसलिए वुंड केयर चाहिए. 20th को एडमिट हुई थी, 11 डेज के बाद डिस्चार्ज हुई है. ऑपरेशन हुआ, मल्टीपल बर्थ हुए बाय सेजेरियन, ट्रिपलेट्स बर्थ हुए. अब आती है बाकी डाटा सिलेक्शन. बाकी डाटा सिलेक्शन में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है. मैरिड विद 1 सन, 5 ईयर, ये हमें पता लग गया, हो इज होम स्कूल. लिव्स ऑन अ कैटल फार्म 300 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ऑगस्टा. हम नॉर्मली कभी भी एड्रेस को नहीं लिखते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर लेटर दिस इज समथिंग दैट टेक्स यू अबव 400 मार्क्स.
That means अगर if we need 350 for B, this line is the most important line that take you better than B. ये वाली लाइन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आज हम जो लेटर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस को। यानी वो जो टीम है वो वही टीम है जो दूर दूर के एरियाज में काम करती है, दैट वर्क्स इन द रिमोट एरियाज। तो फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानना है इस लेटर में, फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस लेटर में जानने के लिए, दैट इज दैट द पेशेंट लिव्स ऑन अ cattle farm 300 kilometers north of Port Augusta and there is no family support. These two lines are damn important in this letter, are very important to be mentioned because this is how the letter will set up. That is why we are asking flying doctor service. So इस लाइन को मैं नॉर्मली सेकंड पैराग्राफ में लिखता हूँ, बट इस लेटर में मैं चाहता हूँ कि ये लाइन फर्स्ट पैराग्राफ में जाए ताकि मेरे को पूरे के पूरे मार्क्स मिले। अब यहाँ तक मेरा फर्स्ट पैराग्राफ तैयार हो गया है। आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस चैपमैन who delivered who delivered triplets and now is being discharged. That is the first line. I will try to shorten it because मेरे को पता है मेरे को स्पेस की कमी आएगी, तो कोमा यहाँ पे भी लगाना है और एंड के बाद भी लगाना है। So let us take it this way. So this is what we have written as the first line. I am writing this letter या फिर this letter is being written regarding मिसेस चैपमन। रिगार्डिंग को हमेशा ओईटी में पूरा लिखना है। आर ई वैसे जब आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होता है तो आर ई दिया होता है, लेकिन जब आपको लिखना है तो पूरा लिखना है रिगार्डिंग। तो आर ई का मतलब जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में आर ई मिले तो उसका मतलब रिगार्डिंग है। लेकिन हाँ, अभी हमें ये लिखना है तो हम कह देते हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिसेस चैपमन हु डिलीवर्ड ट्रिपलेट्स एंड नाउ इज बीइंग डिस्चार्ज। हाउएवर शी लिव्स 300 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ ऑगस्टा, जो भी है 300 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ पोर्ट ए कैपिटल। जैसे नाम का कभी भी नाम छोटा नहीं करना, कैपिटल ऑलवेज स्टार्ट अ नेम with the capital words so that you get full marks for that. So however she lives 300 kilometers north of Augusta and she has no family support, so it is requested to you to provide the required services to her regarding the full-time care of her newly born babies. तो हमारे पास ये पूरा फर्स्ट लेटर का फर्स्ट पर्पस, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग दिस लेटर। आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिसेस चैपमैन हु डिलीवर्ड ट्रिपलेट्स एंड नाउ शी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। हाउएवर शी लिव्स, अब डिस्चार्ज हो रही है तो अपने घर जाएगी। However, she lives 300 kilometers north of Port Augusta and she has no family. So it is requested to you to provide the required services to her regarding the full-time care of her newly born babies. So that is the perfect line you can write. Is it okay for everyone? Of course, you all are on the mute. I will ask you, but I'm gonna save this line. Also, I will send you this line by clicking a photo pic from my mobile phone, and will also drop you this thing on your WhatsApp. ताकि ये line, when we rub it, you can have this line even after being erased. And of course, the recording is going on. So, and also you are advised to listen to the recording at least 3 times. The students who are new, because in one time we cannot get everything, so please listen to the recording 3 times. Of course, after completion of this letter, we will discuss as well, but the recording would come to you and you can listen to it like for 3 times, and then you have doubts, even after that you can ask. So then first paragraph is complete. Second paragraph you say, second paragraph would not be required because social background would have covered. And then अगर लिखना है तो second paragraph में ये सकते हो, she also has one more son who is 5 year old and her husband is all day out on property. That is what is saying that she is all alone, no family support. And in the same paragraph, in the second paragraph, you write during hospitalization, slow post operative progress was there.
also infection in the wound but being brought under control. This is the second important line that you have to write. मतलब इस letter में this small letter has got so many things to learn. First is flying doctor thing is new thing. Second thing आपको सीखने के लिए ये है कि infection in wound, तो आप ऐसे कह सकते हो also there was, क्योंकि पास्ट में थी, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आप हमेशा पास्ट में लिखते हो. ऑल्सो देयर वॉज इन्फेक्शन इन द वुंड which was brought under control. अब बस this is what I want to teach you. Please listen to this point very carefully. If I am unable to deliver you this point nicely, तो रिकॉर्डिंग के बाद जब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा तो आप सब क्वेश्चन पूछना इस बारे में. अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपको मैं अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. बट अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई लाइन ये लिखता है ऑल्सो देयर वॉज इन्फेक्शन इन द वुंड विच वॉज ब्रोट अंडर कंट्रोल, तो ये लाइन दिस लाइन इज रॉन्ग. वाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि आप कह रहे हो कि विच वॉज ब्रोट का मतलब जो कंट्रोल में ला दी गई. दैट मीन्स दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि इन्फेक्शन हैज बीन कंट्रोल्ड. ये लाइन हमें ये बताती है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया गया है. लेकिन जैसे ही आप अगली पैराग्राफ में लिखोगे डिस्चार्ज प्लान में कि इफ द इन्फेक्शन क्लियर्स अप, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइन कह रही है इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गई है और ये लाइन कह रही है कि इन्फेक्शन अभी क्लियर होनी है. तो दैट इज हाउ स्मॉल थिंग्स आर जज्ड इन ओईटी. दिस इज अ वेरी स्पेशल लेटर. नॉर्मली ऐसा लेटर्स में नहीं होता है, इसलिए इस लाइन को टेंसेस में लिखना बहुत जरूरी होता है. तो हम कहते हैं इसको इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाया जा रहा था. सो विच वॉज बींग ब्रोट अंडर कंट्रोल. ये बींग लगने का मतलब है नाउ इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि उसे लाया जा रहा था. दैट मीन्स अभी तक लाया नहीं गया है. लेकिन जैसे ही आप इसको बीइंग को हटाते हो तो ये पास्ट में डेफिनेट बन जाता है पैसिव वॉइस, यानी कि इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाया गया था, यानी कि वो काम हो गया था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको लाया जा रहा था. तो इस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है. दैट इज वाई ग्रामर इज सो इम्पोर्टेंट. दैट इज वाई एवरी टाइम आई टीच ओईटी माई फोकस इज प्राइमरीली ऑन ग्रामर. इस चीज से आप दीज पीपल आर द वंस who reach at this mark. That is how you score A grade in OET writings, when you know what you are doing, and that is how you score 450 marks in OET writing. जब आप ये छोटी छोटी चीजें फ्लाइंग डॉक्टर के हिसाब से जब आप ये डाटा सिलेक्ट करोगे 300 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ऑगस्टा, जब आप छोटी छोटी बातों से ये नोट करोगे कि विच वॉज बीइंग ब्रोट अंडर कंट्रोल, यानी कि अभी तक कंट्रोल, इट इज नॉट येट कंट्रोल. दैट इज हाउ दिस लाइन विल सूट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. Also, suture will need to be removed by the doctor in 1 week's time if the infection clears up. Then this line will support this data which you have written in the previous paragraph of during hospitalization. So, ab next thing, how to make better marks. It is about connection. So, also there was infection in the wound which was being brought under control, so the sutures were not removed. क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आया था अभी तक, so the sutures were not removed. This line should be written, so sutures were not removed, and that is how this line will go in the next paragraph, that suture will need to be removed in 1 week's time. So this is how you design a better letter. Otherwise you can write simply as well. Also there was infection in the wound which was being under control. Normally आप ऐसे लिखोगे. Along with that also अगर आप ऐसे लिखोगे नहीं तो फर्दर sutures were not removed. So आप इन दोनों लाइनों को अलग अलग लिखोगे तो भी you will get B. You will of course get B. लेकिन अगर आपको अच्छा बनाना है, if you want to make connections, if you want a better thing, so you say also there was infection which was being, so the sutures were not removed because of infection. So that is how you write this line. ठीक है. So also there was poor appetite. She was facing some difficulty in the breastfeeding. तो ये poor appetite वाली बात इतनी important नहीं है, आप इस डाटा को खत्म कर सकते हो. Some difficulty with breastfeeding, yes, ये point आपको consider करना पड़ेगा क्योंकि यही तो जाएगा mother craft nurse के साथ. So this is how OET letter is related to each other. अगर आप ये वाली rest light exercise वाली बात लिखते हो तो आपको ये दोनों points भी लिखने पड़ेंगे, reluctant to walk, पुअर एपेटाइट. अगर आप ये वाली बात नहीं लिखते
तो ये आपका डाटा कम हो जाएगा, आपको वॉक वाली लाइन भी हटा दोगे और आप पुअर एपेटाइट वाली बात भी, क्योंकि मेन मेन पॉइंट्स ये हैं: फ्लाइंग डॉक्टर, removal of sutures if the infection subsides, and then some assistance with the babies in the household work, preferably live-in child care assistant and mothercraft nurse for the breastfeeding because she is facing difficulty in the breastfeeding. So this is how OET letter goes. If I have to now understand the whole letter, if now I have to understand the whole letter, that becomes very easy for me. I am writing this letter regarding Mrs. Chapman, who has delivered triplets and is being discharged to her home. But however, she lives 300 kilometers north of Augusta and she has no family support. So it is requested to you to provide her full-time assistance with her babies and also for household chores. So this is the first paragraph. Second paragraph, Mrs. Chapman, lives with her husband, but he is all day out for work. And also there was one more line of social history that you can consider. And then you will jump on to the next paragraph. During hospitalization, she was given this and this thing. Infection was being brought under control. So sutures were not removed because of infection. And she also required this and this thing during hospitalization. Then you write discharge plan. Now it would be greatly appreciated if you could arrange a mothercraft nurse for this purpose, if you could arrange a flying doctor for this purpose, if you could do this thing, if you could help assist her in provide, if you can arrange someone to help her in assistance of exercise, light diet, and this. So you can mention all these points. This is how OET letter goes. So now I will stop the recording because it's a long recording of 20 minutes. So I want everybody to listen to it for 3 times. But of course, I will take your questions from now, and I'm just going to unmute you all so that you can unmute your microphone and can ask your question. Especially the new students who have joined in, they would have more questions. So they might feel that we should not ask questions, but the things are opposite. आप नए हो, आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए. अगर आप कोई बेसिक भी पूछोगे तो जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी बेसिक क्लियर होते हैं, तो हमें उस चीज की स्ट्रेस नहीं लेना. So whatever you want to ask, you may ask. That's fine. So I'm just gonna stop the recording for now. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and I'm gonna unmute your microphones. Thank you.